hurted you so much and you don't know how to forgive those people. You have that anger, that frustration, that rage for that person, right? Not just that one person. I think there would be a lot of people with whom you have been gone through a lot, right? So in today's video, we are going to talk about 3 reasons why you should forgive the people who have hurted you. Hi everyone, I'm Snehal and welcome back to my channel. So intro में मैंने already बता दिया कि मैं क्या करना चाहती हूँ and इस वीडियो में क्या है. So I'm not going to take much time of yours, so I think we should get into the video straight. So throughout the video, I would just ask you to just do one practice. Remember, recall all those people, remind yourself all those people who have came into your life and who have hurted you. See, it doesn't mean that it should be only, strangers or your friends, like the previously strangers, but later on they became your friends or something, It can be anyone, right? It can be your loved ones, it can be anyone who have hurted you. So I want you to think about all those people who have hurted you and take a moment, think about them. Okay? So what you are feeling right now? You have that frustration, you have that rage, you have that anger for that person. You did a lot of things for those people. You gave everything to them, but still they have hurted you, right? किसी को तो मन कर रहा होगा कि जाके तो मैं बस मार ही दूँ उस person को. Okay, so take a deep breath. Okay, inhale and exhale. Okay, now let's get into the video. Why you need to forgive all those people from your life who have hurted you. Okay, so point number one, for your mental peace. See, अभी जैसे कि मैंने ये प्रैक्टिस कराई, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में वो पर्सन आया, not just one person, it would be like a lot of people. Like मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, so a lot of people, right? तो अभी क्या हुआ होगा? चिढ़ मची होगी, बहुत गुस्सा आया होगा, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये चीज़ क्यों हुई, वो चीज़ क्यों हुई. नाउ जब आप ये चीज़ सोचने लगते हो ना, तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे सिनेरियोज और बहुत सारी आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हो, आप बस अपना टाइम वेस्ट कर. पहली चीज़. दूसरी चीज़ है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि हर चीज़ हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड है. हमारा ब्रेन इट डज एवरीथिंग राइट टू आवर बॉडी. तो अगर आप इस चीज़ को बार बार सोचते रहोगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी, राइट? नाउ यू हैव टू थिंक कि क्या इन सभी चीज़ों से जिस पर्सन ने मेरे को हर्ट किया, क्या उसको कोई फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से? आई डोंट थिंक सो कि उससे कोई फर्क पड़ रहा है. उसे नहीं फर्क पड़ेगा. और क्यों फर्क पड़ेगा? क्यों? बिकॉज ही और शी इज लाइक दैट. उसने किया, उसके हिसाब से उसको जो सही लगा उसने किया. दैट पर्सन मूव्ड ऑन. सो व्हाई यू आर होल्डिंग ऑन इट? It is not affecting them, right? It is not hurting them. तो उससे कुछ नहीं होगा. उन्हें पता था कि हाँ ये चीज करने से ये चीज होगी, but still they did that, right? मे भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने unintentionally वो चीज की होगी, but so what? It hurted you, right? उनको तो पता भी नहीं है उस चीज से what you are going through, why you have this rage. उनको कुछ नहीं पता उस चीजों के बारे में. So that doesn't make any sense. और ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारी बॉडी है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? मैं अपने हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ
इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारा काम था लोगों के लिए करना, तुमने किया, ठीक है। अभी उस चीज को वो लेंगे नहीं लेंगे वो उनके ऊपर है। सेम थिंग माई साइकेट्रिस्ट ऑल्सो टोल्ड मी, आई टोल्ड हर लाइक I do a lot of things for people but still they have hurted me so much and she told me कि ऐसा क्यों लगता है आपको। I'm like, you know, there are people who doesn't matter, you do a lot of things for them but still they are somehow or somewhere they are not satisfied with it, doesn't matter how much you do. So she was like, that's it, when you know that people are not going to be happy either of these things, so why you are wasting your energy thinking about it? You have to just think कि हाँ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा ये फर्ज था, मैंने वो चीज किया, ठीक है। अभी सामने वाले पर्सन को लेना है नहीं लेना है, इट्स कंप्लीटली अप टू देम। आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। कोई आपके बारे में नहीं सोचने वाला है और यही चीज तुम्हें भी सोचनी है कि तुम्हारे गुस्सा होने से, तुम्हारे अंदर नफरत होने से या तुमको ऐसे चिढ़ मचने से या फ्रस्ट्रेशन होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स। तो तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए। सब अपने बारे में सोचते हैं और तुम्हें भी अपने बारे में ही सोचना चाहिए। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा हेल्थ, ये तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। पॉइंट नंबर 2, which is very 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 important point, to set you free. See, लोग ऐसा कहते हैं ना कि जब आप किसी को माफ करते हो ना तो आप आजाद हो जाते हो। आपको बहुत जगह पे लाइक यू कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग ऐसा ये चीज बोलते हैं एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। यू नो हाउ, मतलब अभी आपने सोचा राइट उस पर्सन के बारे में या जो भी जितने भी पर्सन जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया, ठीक है, वो नफरत आपके अंदर आ गई, वो गुस्सा आपके अंदर आ गया। Any kind of emotions, you know, any kind of emotions, whether it's love, whether it's anger, anything, irritation, like any kind of thing, it's because that person is still somewhere, somehow important to you, ठीक है। अभी आप इस चीज को ऐसे समझो, नाउ यू विल बी थिंकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा समझो कि रोड पे आप जा रहे हो, ठीक है, किसी स्ट्रेंजर ने आपको कुछ बोल दिया, क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। यू विल नॉट केयर। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर, यू डोंट इवन केयर। छोड़ो, उसने कुछ बोला नहीं, वो कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में, राइट, कुछ भी कर रहा है, वो कोई भी काम कर रहा है, वो बहुत खराब कर रहा है, उसके लिए बहुत खराब है। आपको कोई फर्क पड़ेगा? आपको गुस्सा आएगा उस पर्सन पे? नहीं आएगा। क्यों आएगा? दैट पर्सन इज नॉट कनेक्टेड विथ यू, यू डोंट केयर कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, यू डोंट केयर, राइट। तो यही चीज मैं समझाना चाहती हूँ कि ये जो इमोशंस होते हैं ना, किसी भी टाइप के इमोशंस, ओके, वेदर इट्स एंगर, वेदर इट्स फ्रस्ट्रेशन, वेदर इट्स लव, एनीथिंग, वी ओनली हैव दीज इमोशंस फॉर दैट पर्सन with whom we feel that, you know, that we have that connection, ठीक है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है। सो इसलिए इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट यू शुड सेट योर सेल्फ फ्री, क्योंकि वो तो मजे में, उससे तो पता चलेगा, तो दैट पर्सन विल बी लाइक रियली हैप्पी कि ओ अभी भी दैट लाइक आई एम इम्पोर्टेंट टू हर और टू हिम। बट तुम्हें ये सोचना है कि क्या तुम्हारी एनर्जी या तुम्हारा टाइम इम्पोर्टेंट है। आई मीन तुम ऐसे लोगों के लिए तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, लाइक यू आर सो वैल्यूएबल, ठीक है, तुम कितने प्रेशियस हो, यू आर सो प्रेशियस। डू यू थिंक दैट इट्स वर्थ वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट पर्सन हु हैव हर्टेड यू? तुम्हें लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। So why you are wasting your time with these kind of people? So इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये चीज सोचने लगते हो ना तो आपका हेल्थ खराब होता है, आपकी बॉडी खराब होती है, आपका हर एक चीज खराब होता है। बहुत लोगों को तो मैंने देखा है
की चीजें उनके साथ बुरी होने लगती है ना, लाइक पीपल हर्टेड देम सो मच, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन हो जाती है बहुत ज्यादा पर्सन से, राइट? सो व्हेन पीपल हर्ट अस, तो वो हम इतना सोचने लगते हैं ना कि एक टाइम पे ना इंसान खाना बंद कर देता है, बहुत सारी चीजें बंद कर देता है, राइट? उसकी वजह से इट अफेक्ट्स देयर बॉडी, ठीक है? तुम्हें लगता है कि तुम ये सही कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ? आई डोंट थिंक सो कि तुम सही कर रहे हो। तुम्हें नहीं करना चाहिए ये चीज, बिकॉज उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो पर्सन आज भी तुम्हें कंट्रोल करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम उस पर्सन का नाम सुनती हो या सुनते हो, तुम्हारे दिमाग में वो कहीं कोई भी टाइप का इमोशंस आ रहा है ना, इट मीन्स दैट पर्सन स्टिल कंट्रोल्स यू। वो तभी आपका वो उसका जो कंट्रोल है ना आपके ऊपर से तभी हटेगा जब वो पर्सन, दैट पर्सन वुड बी लाइक अ स्ट्रेंजर टू यू। मतलब वो पर्सन आपके सामने भी आ जाए ना तो आपको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब इट मीन्स दैट यू आर फ्री। आपको नहीं फर्क पड़ता उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, यार तुम अपनी लाइफ में मजे से रहो, खुश रहो, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, बस ऐसे ही सोचना है, यही चीज करनी है। क्योंकि जब तक वो एंगर, वो नफरत, वो क्या बोलते हैं, कोई भी टाइप का इमोशन रहेगा ना, वो बंदा आपको कंट्रोल कर रहा है, या वो बंदी आपको कंट्रोल कर रही है, या वो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, और कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। सो यू हैव टू थिंक कि क्या मैं ये चीज सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ अपने साथ। थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, to cut the cords. See, you have to think like this. Maybe that person, whomsoever, who have treated you like this, हो सकता है कि उसके साथ भी ऐसी, उसने भी यही सेम चीज फेस की होगी, उसको भी किसी ने सेम तरीके से ट्रीट किया होगा, राइट? या हो सकता है यार कि उसका नेचर ही यही है, वो वैसा ही पर्सन, ठीक है? whatever it is. Now you have to think कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि किसी भी टाइप का इमोशंस जब आपको आता है किसी पर्सन के लिए, it means that you have that connection with that person, right? तो वो कनेक्शन आपको ब्रेक करना जरूरी है। It means you have to cut the cords. क्यों? क्योंकि अगर वो कॉर्ड आप कट नहीं करोगे ना, so you are going to see everybody in the same way, ठीक है? आप सबको उसी वे में देखोगे, you will generalize everybody. Let's take an example as a, कोई रिलेशनशिप में था, like that kind of thing. Suppose किसी बंदे ने या किसी बंदी ने किसी को चीट कर दिया या हर्ट कर दिया या whatever it is, ठीक है, किया उसने, या मे भी हो सकता है डिसरिस्पेक्ट या अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, जो भी है, ठीक है, and because of that relation they broke, okay, eventually they broke up. So अब आपको ये चीज सोचनी है कि अब आपके अंदर तो उस पर्सन के लिए नफरत आ गई, राइट? उस पर्सन ने उसके अंदर जो भी फीलिंग्स थी या उसका जो भी बिहेवियर था या जो भी चीजें थी वो आप पे उसने डाल दी। उसने ये चीज तो दिखा दिया कि भाई मैं इस टाइप का पर्सन हूँ, ठीक है, मैं इस टाइप का पर्सन हूँ या मैं इस टाइप की पर्सन हूँ। अभी अगर आप वो कॉर्ड नहीं काटोगे ना तो क्या होगा कि वो जो फीलिंग है ना, वो जो इमोशंस है, क्योंकि आपने उस चीज पे वर्क नहीं किया है, आप उस पर्सन के जैसा बनने लगोगे, ठीक है? एंड आप कहीं ना कहीं, बिकॉज आपको उस पर्सन ने हर्ट किया है, तो अब आप भी सामने वाले को या कोई भी आपके फ्यूचर में कोई भी पर्सन आएगा ना, आप उसको उस तरीके से ही ट्रीट करोगे। व्हाई? बिकॉज यू हैव दैट बैगेज, ठीक है? आपके माथे में वो बैगेज पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं में भी हो सकता है आप इंटेंशनली नहीं करो, बट वो अनइंटेंशनली हो जाएगी वो चीज। सो यू हैव टू थिंक कि मुझे एनी हाउ वो कॉर्ड्स कट करने हैं, वो तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं। तुम्हारे बिना भी मेरी लाइफ चल रही थी, तुम्हारे बाद भी मेरी लाइफ चलेगी, राइट? और चल रही है। तुम्हें ये चीज सोचना है कि तुम्हारा काम था लोगों की मदद करना, ठीक है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना। अभी भी तुम्हारा काम है दैट यू हैव टू ट्रीट पीपल वेल,
ठीक है, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ, यू हैव टू बी लाइक यू नो वेरी नाइस पर्सन, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन ने आपके साथ बुरा किया तो अब आप एकदम, आपके अंदर एकदम नफरत ही आ जाए। बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड मैं भी बहुत टाइम तक लिटरली मुझे ना नफरत हो गई थी हर एक चीज से, बिकॉज आई स्टार्टेड टू थिंक कि सब ऐसे ही होते हैं, लाइक एवरीबडी इज लाइक दिस, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, राइट। वी कांट जनरलाइज पीपल जस्ट बिकॉज कुछ लोग आपको ऐसे मिले हैं या कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे ही होते हैं, राइट। कुछ लोगों की ना नेचर ही उनका ऐसा ही होता है, कुछ लोगों की कुछ लोगों का खुद के ऊपर, उनके ऊपर बहुत सारे बैगेजेस होते हैं जो वो किसी और के ऊपर डाल देते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट और माफ कर दो यार, बिकॉज माफ करने से ना आप ही खुश रहोगे, आपको ही शांति मिलेगी, ठीक है। उस पर्सन के साथ जो होना होगा ना, या उस पर्सन ने आपके साथ जो भी गलत किया होगा, वो उस चीज का आंसर उस पर्सन को मिल जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए आपको अपने ऊपर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो दैट यू आर एन अमेजिंग पर्सन, ठीक है। आप बहुत अच्छे, राइट। हो सकता है कि आपने भी कुछ गलतियां की होंगी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, हो सकता हुई होगी, राइट। हम वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर मेंट टू मेक मिस्टेक्स, राइट। सो इट्स फाइन, गलती की होगी, राइट। बट डू यू थिंक कि जिस पर्सन ने भी आपके साथ ये सारी चीजें की है, उसके लिए अपनी बॉडी खराब करना, अपना टाइम खराब करना, उस पर्सन के बारे में बिना मतलब कि अपनी एनर्जी वेस्ट करना कहीं से भी सही है? थिंक अबाउट इट। अभी खुद के ही अभी थिंक अबाउट इट, लाइक थोड़ी देर की ही प्रैक्टिस मैंने अभी जो कराई, जिसमें वो you reminded yourself all the people who have hurted you. कैसा लगा? गुस्सा आया ना, नफरत हुई ना? It means that person is still holding you. That person is still holding you. That person has control on you. It's affecting your mental health. It's affecting your body eventually. जिसको जो करना होता है वो तो करके चले ही जाते हैं, और ये एक पर्सन नहीं है यार, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, एंड ज्यादातर लोग हर्ट ही करते हैं। A lot of people hurt only, mostly, not only but hurt mostly. But पता है मेरी साइकियाट्रिस्ट ने बोला था that you have to create, boundaries in front of you in such a way कि कोई भी पर्सन आपको कुछ भी बोले या आपके साथ किसी भी तरीके से ट्रीट करे ना, that should not affect you. वो बाउंस होके ना उनके पास ही चला जाए. You have to be like that. So create that boundary, create that wall in front of you. तुम्हारे अंदर पीस होना चाहिए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हाँ मैंने मेरे तरफ से सारी चीजें सीखी, मैंने मेरे तरफ से जितना हो सकता था मैंने किया. I respected that person, I respected that people, I respected everyone, I did everything, ठीक है. But somehow, somewhere it didn't work out, or somehow, somewhere that person hurted me. It's okay. I'm not going to control, I'm not letting that person to control my life, my feelings. No. He is not worthy of it. He is not worthy of my thought. He is not worthy of my emotions. He is not worthy of my time. He or she is not worthy for anything. Anything. You are precious. हर एक चीज, तुम्हारी हर एक चीज ना बहुत precious है. So don't waste on these kind of people who have hurted you. ठीक है. So yeah, that's the video. I hope that you would like this video, and please
please forgive all the people who have hurted you, because they don't deserve your energy, they don't deserve your time, they don't deserve your emotions, they don't deserve anything of you. Trust me, you're going to have an amazing people in your life. Trust me. Okay. And yeah, even if nobody is going to love you, I am going to love you so much. Okay. So yeah, that's the video. I will meet you at my next video. And yeah, thank you so much. Have a great day. Bye.